Hello, welcome students once again in the class where we will be reading part 2 of Ulysses, a poem by Tennyson. Half of it we have already done yesterday and we will move forward today. I am Dr. Anil Dadich. Okay, now I'll read the lines and then I'll try to explain these lines. This is my son, mine own Telemachus. He introduces his son Telemachus in this paragraph, in this stanza. This is my son, my own Telemachus. These two words, mine own, shows his affection towards his son Telemachus. He likes his son very much. These two lines, these two words, this phrase expresses his love and affection for Telemachus. This is my son, my own Telemachus, to whom I leave the scepter and the aegis. To whom I leave the scepter. Scepter is actually Rajdand, a rod that the king holds. It is a symbol of the ruler. It is the symbol of a king. राजा के हाथ में जो दंड होता है उसको स्केप्टर कहते हैं. एंड द आइजल, आइजल इज आइलैंड, दैट इज टू से इथाका, जहाँ का वो राजा है. तो आई लीव द स्केप्टर, दैट इज टू से द राजदंड, एंड द आइलैंड इथाका in possession of Telemachus, well loved of me. He expresses his love for Telemachus once again. Discerning, now he tells you the qualities of Telemachus. Discern is the verb. Discerning means one who is capable to observe, to notice, to see, to watch, to value. So he is a discerning person, means he is able to observe what? To fulfill this labor. To fulfill this labor. What labor? The labor to rule the people of Ithaca. So he is able to observe his duty, the labor, how to fulfill the duties of a king. कैसे करेगा वो ये काम? By slow prudence. Prudence is wisdom. Prudence is समझदारी, wisdom, बुद्धि. Slow wisdom मतलब he is not very sharp to do all these duties. With a slow prudence, बहुत ही सावधानी पूर्वक. Slow यहाँ पे सावधानी को बताने के लिए उसने यूज किया है. That Telemachus knows the temperament of the people of his island. So with slow prudence, with slow wisdom, to make माइल्ड ए रगड पीपल. इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे. माइल्ड को बाद में पढ़ेंगे, रगड पीपल को पहले पढ़ेंगे. तो बाय हिज स्लो प्रूडेंस, बाय हिज स्लो विजडम, टेलीमकस विल मेक ए रगड पीपल माइल्ड. रगड मीन्स रफ. Rugged means uncivilized. The people of Ithaca are uncivilized, and the duty of the king Telemachus is to make them mild. Mild मतलब soft, civilized, educated, या अपने एक्सप्रेशन में, अपने टेम्परामेंट में वो थोड़े से माइल्ड हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, बेहतर लोग हो जाएं, सभ्य लोग हो जाएं. ऐसी कोशिश वो धीरे धीरे कर रहा है. एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, वो कैसे? इंटेंस डिग्रीज नहीं यूज़ कर रहा है, एक्सट्रीम डिग्रीज यूज़ नहीं कर रहा है उनको सभ्य बनाने में. थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम. देम मीन्स द रगेड पीपल, द अनसिविलाइज्ड पीपल, प्रजा. उनको सबड्यू करना है. सबड्यू करना मीन्स कंट्रोल करना. सबड्यू मीन्स टेम करना, उनको पालतू बनाना. जैसे हम जानवरों को जो वाइल्ड होते हैं, घोड़ा जैसे है, उसको जो अनकंट्रोल्ड होता है उसको अपन कंट्रोल करते हैं. इन द सेम मैनर इथाका के जो लोग हैं उनको द किंग Odysseus or Ulysses considers कि they are rough people, they are very strong people.
तो he tries to subdue them. His son Telemachus tries to make them mild with soft degrees. To subdue them means to control them, to tame them, to domesticate them to the useful and the good. He is trying to make them useful so that they can be useful to the country. देश हित में काम आने वाले प्रजा वो तैयार कर रहा है, एंड द गुड, और वो लोग अच्छे साबित हों, दे कैन बिकम यूजफुल टू द कंट्री, ऐसा. मोस्ट ब्लेमलेस इज ही मीन्स टेलीमकस. टेलीमकस इज मोस्ट ब्लेमलेस, निर्दोष है, ही इज इनोसेंट, उस पर किसी प्रकार का कोई दोष आज तक लगा ही नहीं है, और उसमें भी एक्सट्रीम डिग्री उसने यूज करी, मोस्ट. तो ही इज़ मोस्ट ब्लेमलेस मतलब आज तक किसी तरह का कोई दोष उस पर लगा नहीं है. ही इज़ मोस्ट ब्लेमलेस, सेंटर्ड, सेंटर्ड मीन्स फोकस्ड, इन द स्फीयर, स्फीयर मीन्स प्लेस, यहाँ पे यू कैन कॉल इट आइलैंड. तो फोकस्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, आइलैंड पे उसकी एज ए किंग जो भी ड्यूटीज़ हैं, ऑफ कॉमन ड्यूटीज़ जो उसकी होती हैं एज ए किंग, वो सब उन पे फोकस्ड है. Decent not to fail in offices of tenderness, and he is a very decent fellow who never fails in the offices. Offices मतलब duties, office means duty, office का मतलब होता है कर्तव्य. किसका कर्तव्य? एक राजा का कर्तव्य है ऑफ टेंडरनेस, कि वो लोगों को कोमलता भी दिखाए. क्यों? क्योंकि वो रफ है, और रफ आदमी को रफनेस के साथ नहीं जीता जा सकता. अल्टीमेटली उसको जीतना है तो यू हैव टू शो टेंडरनेस. हर गलती की सजा दे करके ही नहीं सुधारा जाता, उनको टेंडरनेस के साथ भी सुधारा जाता है. तो ही इज़ डिसेंट नॉट टू फेल इन द ड्यूटी ऑफ टेंडरनेस. वेयर एवर ही हैज़ टू शो टेंडरनेस ही विल शो देम. एंड पे मीट एडोरेशन. मीट का मतलब है यहाँ एप्रोप्रिएट. एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, जितनी देनी चाहिए उतनी. एडोरेशन का मतलब क्या है? Adoration is actually a combination of two words, love and worship. Means loving to the extent of worship. आप किसी को पूजा की हद तक पसंद करते हो, that is adoration. तो पे appropriate kind of worship किसको? To my household gods. मेरे जो household gods हैं जिनको हम पूजते हैं उनको he pays meet adoration, appropriate kind of worship. कब? When I am gone, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा. When I am gone to explore the new world. He works his own, I mine. My son works his work. And what is his work? His work is to rule the island. His work is to rule the island, and I mine. And what is the work of Ulysses? I work mine. So what he wants to communicate, I have a hungry heart to explore the world. मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, तो मैं मेरा काम करूँगा. मेरा बेटा जिसको रूल करना अच्छा लगता है, ही विल वर्क हिज ओन. नेक्स्ट, देयर लाइज द पोर्ट. अब वो इशारा करता है किसको? अपने साथियों को. ही एड्रेसेस टू हिज कंपेनियंस कि देयर लाइज द पोर्ट, मतलब वो सामने पोर्ट है. पोर्ट मतलब बंदरगाह. देयर लाइज द पोर्ट, द वैसल, वैसल कहते हैं शिप को, जहाज को जिसमें उसको ट्रैवल करनी है. द वैसल पप्स हर सेल. सेल है वो जो पर्दे लगे रहते हैं जहाज़ पे, आपने देखे होंगे. वो ज़माना वही था जिनमें सेल्स में हवा भर के वो लोग बढ़ते थे. तो पप्स द सेल्स मतलब द सेल्स आर ग्रोन लाइक बलून्स. तो दे पफ, फूल गए हैं वो. देयर ग्लूम द डार्क, अंधेरा होना शुरू हो गया. कहाँ पे? अपॉन द ब्रॉड सीज, समुंदर फैला हुआ है. ब्रॉड है, ब्रॉड मीन्स वाइड एनफ, ऐसे समुंदर पे. माई मैरिनर्स, ही एड्रेसेस टू हिज मैरिनर्स. मैरिनर्स मतलब नाविक, जो उसके साथ जाने वाले हैं, उनको ही एड्रेसेस माई मैरिनर्स. और मैरिनर्स के लिए वो यूज़ करता है वर्ड द सोल्स. सोल्स मतलब द पीपल दैट हैव टॉइल्ड, वो आत्माएं या वो मित्र या वो मेरे साथ की, मेरे दिल को जुड़े हुए जो लोग हैं वो. तो सोल्स मीन्स दिल से जुड़े हुए लोग. दैट हैव टॉइल्ड, टॉइल मीन्स वर्क हार्ड. दोज हु हैव वर्कड वेरी हार्ड. एंड रॉट, रॉट मीन्स
वर्किंग ओनली, वर्क करना ही, एंड थॉट विद मी. They have toiled, they have worked, and they have thought with me. Thought with me means their thoughts have also been the same as mine. That ever, ever means always. The people who always with a frolic welcome took the thunder and the sunshine. Thunder represents hardships, difficulties, problems. So whatever problems came in their way, they welcomed them with a frolic. Frolic matlab they were happy. उसको भी उन्होंने एंजॉय किया. इवन द थंडर वॉज वेलकम टू देम. एंड द सनशाइन. सनशाइन मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पी पीरियड, हैप्पी टाइम्स. तो व्हेन दे वर ऑन द वॉयज, जब वो समुद्री यात्रा पर थे पहले 20 ईयर्स बैक, तब सन थंडर एंड सनशाइन इज ए फ्रेज एक्चुअली. इसका मतलब होता है मुश्किल और अच्छा समय, दोनों समय में दे वेलकम्ड इट एंड ओपोज्ड फ्री हार्ट्स एंड फ्री फॉरहेड्स. अपने साथियों के लिए वो यूज़ करता है. ओपोज करते थे वो किसको? थंडर को. ओपोज करना मतलब फेस करना. तो दे फेस द थंडर एज वेल एज द सनशाइन विद ए फ्रॉलिक वेलकम, विद ए हैप्पी एटीट्यूड. और कैसे लोग हैं ये मैरिनर्स? उसके लिए वो कहता है दे आर फ्री हार्ट्स, आज़ाद लोग हैं दिल के भी. एंड फ्री फॉरहेड्स. फॉरहेड कहते हैं दिमाग को, माथे को. तो उनके दिमाग भी खुले हैं, उनके दिल भी खुले हैं. ऐसे उनको एड्रेस करके वो कहता है यू एंड आई आर ओल्ड, नाउ वी हैव बिकम बोल्ड ओल्ड पीपल. ओल्ड एज हैथ येट हिज ओनर एंड हिज टॉयल. लेकिन बूढ़ा होना क्या खराब है? वो कहता है इट हैज़ इट्स ओन ओनर. ओनर मतलब रेस्पेक्ट, हमारा अपना रेस्पेक्ट है. एंड हिज ओन टॉयल. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. तो वी कैन ऑल्सो वर्क हार्ड. लेकिन जब तक जिएंगे तब तक वी विल लिव विद ऑनर, वी विल लिव विद टॉयल, वर्किंग हार्ड. डेथ क्लोजेज ऑल. एवरीथिंग विल कम टू एन एंड विद द डेथ. मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाएगा. बट समथिंग अर मीन्स बिफोर, समथिंग बिफोर द एंड, उस अंत से पहले, बिफोर द डेथ. सम वर्क ऑफ नोबल नोट. नोट मतलब विच इज़ नॉट वर्दी, विच इज़ नोटेबल, विच इज़ रिमार्केबल, जिसकी लोग याद रखें, ऐसा. तो वी विल डू सम नोबल वर्क मे येट बी डन. सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन. अभी भी किया जा सकता है. दे कैन डू स्टिल. नॉट अनबिकमिंग मैन. अनबिकमिंग मतलब इनकैपेबल पीपल. अनबिकमिंग मतलब जो कुछ कर नहीं सके. तो नॉट अनबिकमिंग मैन मतलब वी आर नॉट अनबिकमिंग मैन, मतलब वी आर बिकमिंग मैन, वी आर कैपेबल पीपल. नॉट और अन डबल नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव हो जाएगा. वी आर कैपेबल मैन दैट स्ट्रॉव विद गॉड. हम साधारण लोग नहीं हैं. इन ट्रोजन वॉर दे हैव स्ट्रॉव. स्ट्रॉव इज सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइव. स्ट्राइव मीन्स स्ट्रगल. तो स्ट्रॉव मीन्स स्ट्रगल्ड. वी हैव स्ट्रगल्ड विद गॉड्स. वो जो ट्रोजन वॉर था उसमें देवताओं ने भी पार्टिसिपेट किया था और डेस्टिनी से वो लड़े थे, अपने भाग्य से वो लड़े थे. तो वी हैव स्ट्रगल्ड विद गॉड्स इन अर्लियर टाइम्स. अब वो उनको मौसम की तरफ इशारा करता है. द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स. पहाड़ों से रोशनी, ट्विंकलिंग किसकी? स्टार्स की. इट हैज़ स्टार्टेड टू कम. द लाइट बिगिन्स टू ट्विंकल फ्रॉम द स्टार्स. द लॉन्ग डे वेन्स. वेन्स मतलब कम टू एन एंड. दिन बहुत लंबा था लेकिन अब वेन हो रहा है, मतलब इट इज़ बिकमिंग वीक. द स्लो मून क्लाइम्स. मून हैज़ स्टार्टेड क्लाइंबिंग इन द स्काई स्लोली. द डीप मोन्स. द डीप, ये नोटवर्दी फ्रेज है. डीप के पीछे अगर आप दी लगा देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं, तो डीप सबसे गहरा एक ही हो गया. सबसे गहरा क्या हुआ? समुंदर. तो दैट डीप ऑलवेज मीन्स ओशन. जो सबसे गहरा वो समुंदर. तो द डीप मीन्स द ओशन. द डीप मोन्स. मोन्स मतलब आवाज़ निकलना, तेज आवाज़ निकलना. किसकी आवाज़ें? लहरों की आवाज़ें. द डीप moans around with many voices. The ocean is filled with many kind of voices. कहने का मतलब क्या है? It is an example of romantic suggestiveness. You have to guess what are these many voices and
दिस इज़ द थ्रिल ऑफ द पोएम कि वो उन वॉइसेस की सर्च में ही जा रहा है। वो जो चैलेंजेस हैं, इन वॉइसेस में क्या है? चैलेंजेस। तो he is going to face these challenges. So the deep moans around with many voices. Come, my friends, it is not too late to seek a newer world. It is not too late to seek. It is not so late that we cannot seek, we cannot search a new world. पुश ऑफ, पुश ऑफ मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने चप्पू चलाने शुरू कर दिए। दे वे स्टार्टेड पुटिंग द ओर्स इन द ओशन। तो पुश ऑफ, धक्का दीजिए, जहाज़ को आगे खींचिए, ठेलिए। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर, अपनी अपनी जगह पे। इन ऑर्डर मतलब इन देयर ओन सूटेबल प्लेसेस। सिट वेल एंड स्माइट, स्माइट मतलब स्ट्राइक करना, चोट पहुंचाना। किसको चोट पहुंचानी है? टू द साउंडिंग फरोज। फरो कहते हैं लाइंस को, किसकी? वेव्स की। तो लाइंस को स्ट्राइक करना है, वेव्स को स्ट्राइक करना है, मतलब चप्पू से उन पे वार करना है ताकि वो चले। तो सिट वेल, ढंग से बैठ जाइए, जच के बैठ जाइए, सो दैट यू कैन स्माइट, सो दैट यू कैन स्ट्राइक द साउंडिंग फरोज। फरोज हियर रेफर टू द वेव्स ऑफ द ओशन। फॉर मीन्स बिकॉज, बिकॉज माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। मेरा पर्पज है ये जो सन जहाँ ढल रहा है उससे परे जाना। एक्चुअली ही इज इंडिकेटिंग टू द लाइफ लॉन्ग जर्नी। सनसेट यहाँ पे सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है, मतलब जब जीवन की शाम ढलेगी तब तक वो चलता रहेगा। तो माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स। तो वेस्टर्न पार्ट जो है उसका मतलब क्या हुआ? जिधर सूर्य ढलता है। तो सनसेट की तरफ जहाँ स्टार्स ढलते हैं वहाँ तक जाना है। कब तक? अनटिल आई डाई, जब तक मरूँ नहीं तब तक। इट मे बी, ऐसा पॉसिबल है, इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन। कि गल्फ, गल्फ का मतलब क्या है? यू ऑल अंडरस्टैंड गल्फ, खाड़ी जहाँ होती है, वेयर टू ओशंस मीट। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ बहुत तेज़ वेव्स होती हैं जब आपस में दो समुंदर टकराते हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि दे विल वॉश अस डाउन, मतलब वी विल बी ड्राउंड इन द ओशन। इट मे बी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वी शैल टच द हैप्पी आइजल। इस ओशन के परे क्या है? ही इमेजिन्स की हैप्पी आइजल से, हैप्पी का एच कैपिटल है, आइजल का आई कैपिटल है। ही इंडिकेट्स टू द हेवन, ही इंडिकेट्स टू दी पैराडाइज। स्वर्ग की कल्पना करता है कि हो सकता है अगर इन समुद्रों को हमने पार कर लिया तो मे बी वी विल रीच द पैराडाइज। और पैराडाइज में कौन है? वी विल सी द ग्रेट एक्िलस whom we knew. एक्िलस इज ए ट्रोजन हीरो। उसने ट्रोजन वॉर में हिस्सा लिया था एंड ही डाइड इन ट्रोजन वॉर। तो अब वो स्वर्ग में है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इफ़ वी रीच हेवन तो वी विल सी ग्रेट एक्िलस whom we knew. दो मच इज़ टेकन मच अबाइड्स। बहुत कुछ हमने जी लिया। मच इज़ टेकन मतलब वी हैव ऑलरेडी पास्ट, वी हैव एक्सप्लोर्ड, बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ हमने ढूंढ लिया है। मच अबाइड्स, लेकिन इस दुनिया में ख़त्म तो कुछ होता ही नहीं ना। तो मच अबाइड्स, अबाइड्स मतलब अभी भी बाकी है। दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, अब हम वो स्ट्रेंथ तो नहीं बचे विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन, जो धरती आकाश को हिला देते थे। दैट विच वी आर, हम जैसे भी हैं हम हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, और हम क्या हैं? वी आर वन इक्वल टेम्पर, हमारा टेम्परामेंट इक्वल है, बराबर का है। और वो कैसा है? ऑफ हीरोइक हार्ट्स। वी आर हीरोइक हार्ट्स, हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हीरोइक हैं। लेकिन ये कैसे हो गए हैं? मेड वीक बाई टाइम एंड फेट, भाग्य ने या समय के साथ दे हैव बिकम वीक, बट स्ट्रॉन्ग इन विल। फिजिकली दे मे बी वीक, बाई टाइम वी मे बिकम वीक फिजिकली, बट स्ट्रॉन्ग इन विल। विल पावर में स्ट्रॉन्ग है। किस बात के लिए स्ट्रॉन्ग है? टू स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब टू स्ट्रगल, टू सीक, नया ढूंढने में, टू फाइंड, ढूंढने में, एंड नॉट टू यील्ड, यील्ड मतलब सरेंडर। वी विल नेवर सरेंडर, सरेंडर कब तक नहीं? जब तक जिंदगी है। अनटिल आई डाई, जैसा उसने ऊपर बोला। तो दिस पोएम गिव्स यू ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लिविंग। आप जीवन कैसे जी सकते हैं?
पूरी क्यूरियोसिटी के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ. You have to live with full of your energy and full of positivity. That is the message that this poem gives. And on such a note, the poem comes to an end. Thank you.